जब ध्यान करता हूँ तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि यही बैठा हूँ, पर थोड़ी देर में लगता है कि हिल रहा हूँ। इससे ध्यान भी भटकता है और कई बार डर भी लगता है कि गिर न जाऊँ। फिर अपनी आँख खोल के बैठ जाता हूँ, बीच में आँख खोली रखता हूँ। कृपया बताएं ये क्या है, इससे मुझे डर क्यों लगता है। पहली बात तो यह है कि आँख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता है। आज आपको अष्टांग योग के विषय में बताया गया, राइट? तो 8 steps are there. So 7 steps you follow, then you reach the 8th step, right? The 7th step is dhyana and the 8th is the samadhi. पर ध्यान तक पहुंचने से पहले you need perfection of your asana and you need perfection of your pranayam. Third comes perfection of your dharana. Dharana is the power to visualize. So बिना ये 3 स्टेप्स को निकले कोई भी सीधे ध्यान पे नहीं पहुंच सकता। जैसे you need to do your primary and then middle school, then higher secondary, then college, then you reach university. जो अभी 2-3-4 साल का बच्चा है वो ये नहीं कह सकता मैं सीधे यूनिवर्सिटी पहुंच गया। चला भी जाएगा तो वो is of no use, is not eligible age or intellect for that. So अगर आपका आसन पक्का नहीं है, which unfortunately is truth of many of you, you can't sit straight. आप सब कमर झुका के बैठे रहते हो और जो कमर झुका के बैठे मेरे लिए वो बूढ़ा है. And your age is not what chronologically the number is, but your age is how strong your spine is. आप 90 साल के हो सकते हो और आप जवान हो सकते हो क्योंकि आपका स्पाइन स्ट्रांग है. और अगर आपका स्पाइन वीक है तो यौगिक साइंस कहती है कि आप 18 साल की उम्र में 80 साल जैसा बिहेव कर सकते हो. So this is one principle you all of you have to remember. I know it is very difficult क्योंकि गलत आदत पड़ गई कमर झुका के बैठने की, बैक में सपोर्ट लेने की. और तो और इस शिविर में, यूथ शिविर में कई लोग दीवार ढूंढते रहते और दीवार के साथ सट के बैठ जाते. अब आदत है, गलत पड़ गई, किसी ने कभी टोका नहीं है क्योंकि किसी को मालूम नहीं है. But the truth is this, if your spine is strong, then you will have very good immunity and you will have very strong lungs and you will have very good diaphragm. Hence you will have very good digestion. And the best part is, if you have a strong spine, then you will breathe right. Wrong breathing and right breathing का फर्क थोड़ा समझिए. अगर आपकी breath rate in a minute is more than 20, you are breathing wrong. Your breath rate per minute should be less than, if 16, okay, but if you can take it lesser than 16, then you are doing some good work. आप सेकंड्स की घड़ी सामने रखिए और अपना ब्रेथ रेट नापिएगा ना. उस समय पर आप लंबा लंबा सांस नहीं लीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा, और आप काउंट करिएगा कि आप 1 मिनट में कितने श्वास लेते. Because we think a lot, we stress a lot, we are angry always, we are too anxious and excited and sometimes too gloomy. Hence our breath rate changes. आप अगर ज्यादा गुस्सा खाते हैं तो श्वास रेट आपकी 30 से 35 में हो जाएगी, और जब जोर से गुस्सा आया होता है तो 35 से ऊपर भी चला जाता है. Let me put it like this. A dog life is not more than 14, or max case में चले जाए ना तो 14 and a half या 15. They die very quickly. Why? You know how much is the breath rate of a dog in a minute? It might go from 50 to 60. And if dog is running and racing, then it might go even more than that. So the faster you breathe, you exhaust your lifespan much quickly. So even if a yogi knows how to run, and Swami Buaji, the great yogi, used to say, you should run only in one condition, when there is a lion after you to eat you.
Otherwise, there is no need to run. To have cardiovascular strength, which any sportsman would have. तो उसके लिए the best is you do the Surya Namaskar of Dakshina Paddhati, what is practiced in South, or what we teach here in this ashram, and some of great yogic masters in South had been doing it from last 100 years or so. It's a very challenging one, because you have to know the geometry of your body. So the angles and the degrees are taken into consideration. तो जब एक योगी सूर्य नमस्कार करता है तो उस समय पर उसका ब्रेथ रेट भी तेज होता है, पर जब उसके बाद वो शवासन में जाके और फिर प्राणायाम के लिए बैठता है तो उसका ब्रेथ रेट इन अ मिनट 2 breaths or just 1 breath or in 2 minutes 1 breath. So the yogi knows how to handle his body much better. Making it simple, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आपका स्पाइनल कॉलम स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रांग है तभी आप बिना हिले डुले आराम से सीधे बैठ सकते हो। और ये बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आपने योगी बनना है, इसलिए मैं इसलिए भी कह रही हूं कि इससे आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अगर 2 into 10 है आज तो इट विल गो to 6, और अगर आप थोड़ा योग निद्रा करने लग जाएं तो इट कैन गो टू 7, और अगर आप प्राणायाम और धारणा को सिद्ध कर लिए and you move into the zone of dhyana, then you can touch from 10 to 8 and possibly 9 too. Can you believe how your concentration and intelligence levels rises as you do your pranayam practices? It's unfortunate, स्कूलों में ये बात कोई नहीं समझाता, किसी को पता ही नहीं है। आपके नंबर कम आ जाए सब आपको चिल्लाते हैं, चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, पर कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा है कि अगर आपकी मेमोरी लीकी है, मैंने जो पढ़ा वो भूल गया, जो याद किया वो भूल गया, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, ये कोई नहीं बता रहा। And it can be very simply done if you regularly practice your pranayam for 20 minutes every day. 20 minutes I am saying. So उसमें करीब 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम हो और 10 मिनट जो है वो कपालभाति या भस्त्रिका दोनों में से कोई एक होए। और क्योंकि इस समय आप सब लोगों ने लंच खाया है और कुछ लेट भी खाया है, तो इसलिए इस समय पर हम भस्त्रिका नहीं बता पाएंगे, पर नाड़ी शोधन बताएंगे। कल मॉर्निंग आसनों के बाद आपको वहीं पर भस्त्रिका का एक एक्सपीरियंस हाउ टू डू दैट, वो आपको हमारे जो इंस्ट्रक्टर उस समय होंगे वो आपको बता देंगे। So if you do 20 minutes of pranayam every day, and for that your posture should be rock solid. देखो, जब आपने हाथ यूं हिलाया तो हाथ हिला पहले या मन हिला पहले? मन हिला ना, यूं किया, यूं किया, नहीं हिल रही, आंख इधर गई, उधर देखा। तो ये जो फिजिकल मूवमेंट होती है ये बाद में होती है, पहले मूवमेंट कहाँ होती है? हमारे मन में हो रही है। हमारे मन में क्या मूवमेंट चल रही है? वी आर सो अनकॉन्शियस, वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर थिंकिंग, हेंस वी एंड अप डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स विद आवर बॉडी। अब नाक बंद था इसलिए यूं किया कि आदत पड़ गई इसलिए कर दिया। बहुत सारी चीजें आप नोट करेंगे, अब खुद की नोट करनी थोड़ी डिफिकल्ट होगी। सो इफ यू हैव कम हियर विद द फ्रेंड, ट्राई टू नोट योर फ्रेंड एंड देन ask the friend, are you doing it consciously or are you doing just unconsciously? So हमारे आसन स्ट्रांग होते हैं तो हमारा स्पाइन स्ट्रांग होता है, हमारा स्पाइन स्ट्रांग होता है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है
तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और जितना हम प्राणायाम करते हैं हमारा धी, धृति, स्मृति तीनों चीजें बढ़ जाएंगी। धी इज बुद्धि या इंटेलेक्ट, धृति इज रिटेनिंग पावर, वट एवर यू हैव लर्न्ड यू रिटेन दैट, यू डोंट लूज इट। भाई जो पढ़ा है वो याद भी तो रहना चाहिए। और तीसरा, जब जरूरत पड़े तो हम उसे याद भी कर सके, तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो गई। So if you wish to be a good student, then you have to have these three things. Dhi, dhriti, smriti. Say it with me. Dhi, dhriti, smriti. अंग्रेजी में हम करें तो हो जाएगा इंटेलिजेंस, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग दैट। अब ये तीन चीजें अगर आपकी सही हैं, I promise you, I can give you in writing, you will excel in any field. You want to be automobile engineer, you want to be electrical engineer, you want to be computer engineer, you want to be doctor, you want to be an Ayurvedic practitioner, you want to be an astronaut, you want to be an engineer, you want to be a teacher, or you want to be a sadhu, whatever. You will be the best of you. But that requires one thing, and that is discipline. Just see the nature. Everything in nature is in discipline or not. Right? Sun, star, moon, river, sea, ocean. They all follow the discipline. Weathers, ऋतुएं. They come in time. जब बारिश का टाइम हो और बारिश नहीं आए तो पूरा देश रोता है। भारत की इकोनॉमी हमारी बारिशों पर निर्भर करती है। अगर जिस तरह सूखा कुछ जगह में पड़ा, महाराष्ट्र में बारिश ठीक से नहीं हुई, ओवर पंपिंग ऑफ सरफेस वाटर, ट्यूबवेल ज़्यादा यूज़ किए हैं, पानी कम हो गया है, 300, 350, 400 फीट तक भी पानी नहीं मिल रहा है और पंपिंग हो रही है, और हम अपने रिसोर्सेज को जितनी बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। उधर पेड़ कट रहे हैं क्योंकि मकान बिल्डिंगें बने, रोड बने, और इधर कम वृक्ष, कम बारिश, कम फसल, इकोनॉमी कहाँ जाएगी? सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी आए हैं, आप अपना जन्मदिन होए, आपके मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर का जन्मदिन होए, उनकी कोई एनिवर्सरी होए, ट्राई टू पिक अ स्पॉट एंड प्लांट अ ट्री। प्लांट अ ट्री। You know, इस आश्रम में good 20 years ago, I had said to people that when you come to see me, don't bring me bouquet of flowers. What will I do with that? Just imagine 4000 आदमी आए, 4000 बुके ले आए, मैं रखूंगी कहाँ? इतने वासिस नहीं है, और होम भी तो रखेंगे कहाँ? And what is the use? तो उस समय मैंने सबको कहा, bring me a जिंदा plant, not a dead plant. जिंदा plant मतलब जड़ के सहित. So people bought me nice trees. So we have beautiful fruit orchard. अमरूद है, आम है, जामुन है, रसबरी है, और तो और अंजीर है, चीकू है। चीकू हम महाराष्ट्र से ले आए थे, वो भी चल गया यहाँ पर। आम सहारनपुर से आया, वो भी चल गया यहाँ पर। केला हम बॉम्बे की तरफ से ले आए, वो भी। हमारे यहाँ सब चलते। You know why? The environment is so good. Right? People meditate. People come from far off to do seva, and everybody is just being so nice and kind and smiling and Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. सुबह में ध्यान कीर्तन हो रहा है, शाम को ध्यान कीर्तन हो रहा है, और ये ध्यान से जो वाइब्स बन रही हैं, उससे सारे पेड़ हैप्पी, and they give us bountiful of flowers. Nature is in discipline, so we too have to be in discipline. If we will be in discipline, then we too will bloom beautifully. Right? जिसके पास discipline नहीं है ना जीवन में, वो पोस्ती आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है।
आपको जी हमारे डैडी जी के पास बड़े पैसे, हमें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू नेवर नो, एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितनों का बम बोल गया है, कितनों का बम बोल गया। और जो किसी के माल पे नजर रखे वो चोर होता है, फिर वो माल भले अपने बाप का ही क्यों ना हो। अगर मेरे में कुछ दमखम है तो मैं अपनी मेहनत से कमाऊं। मेरे पिता ने या माँ ने अगर मेहनत करके कुछ बनाया है, वाई शुड आई हैव ग्रीडी आईज? यू आर नॉट अ ग्रीडी डॉग, यू आर नॉट, यू आर अ सेंसिबल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, सो मेक योर ओन फॉर्चून। ये तो अच्छी बात है ना, माँ बाप हमारे अच्छे हैं, वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि हमारे पास अकल नहीं है, क्या हमारे पास दिल जिगर गुर्दे नहीं हैं, क्या हम मेहनत नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नजर रखें उनके ऊपर? लेट देम एंजॉय देयर रिचेस, विल वर्क हार्ड, विल मेक मनी, वट एवर वी नीड विल मेक इट। एंड नो दिस, टू बी हैप्पी यू डोंट नीड मनी। अब भाई अब डक डांस करना हो तो उसमें क्या चाहिए? 2 हाथ 2 पैर, भले टूटे हों तो भी चलेंगे, भले स्प्रेंड हों तो भी चलेंगे। सो म्यूजिक इज योर रियल वेल्थ। When you can dance, that is your real wealth. When you can laugh on your sufferings, you have a real wealth. Right? You have a real wealth. So be true wealthy. Don't be money wealthy. Money is thing which is not reliable at all. So that discipline is required. तो जैसे यहाँ आप सुबह उठ रहे हैं, जैसे आप टाइम पे यहाँ खा रहे हैं, आई नो कईयों को लगता है कि इतनी जल्दी डिनर क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे साइंस। आप जो भी मील खाते हैं जिसमें कार्ब्स प्रोटीन का इक्वल प्रोपोर्शन होगा, उसे डाइजेस्ट करने के लिए, वेजिटेरियन मील को डाइजेस्ट करने के लिए द बॉडी नीड्स एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 घंटे अगर हमारा भोजन पच गया, उसके बाद हम बिस्तरे में जाएंगे तो बॉडी विल यूज द न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड अप द सेल्स एंड गिव अस हेल्थ। लेकिन अगर आपने बहुत हैवी डिनर खाया और विद इन 10-20 मिनट्स और हाफ एन आवर आप बिस्तरे में सोने चले गए, तो बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड and then you are sleeping, the body temperature falls down, the metabolism falls down, और उससे जो भी आपने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं, और जब ये खाना ठीक से नहीं पचेगा तो इससे एक चीज बनती जिसे हम आयुर्वेद में कहते आमा। आमा मीन्स टॉक्सिसिटी। दिस टॉक्सिसिटी विल क्रिएट ट्यूमर्स, कैंसर्स and many types of unneedful diseases which we don't want it. So the logic says, eat your dinner at least 3 hours before your sleep time. That's very important. So to maintain your health in a longer run, ये रूल आपको अपनाना होगा। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप कभी यूरोप गए हैं या यूरोप के बारे में कुछ पढ़ा है, यूरोप closes by 5 o'clock. All shops. मैं पहली बार जब स्विट्जरलैंड गई तो ऐसे ही घूमने के लिए एक घड़ी की दुकान में सोचा चलो, खरीदनी तो नहीं थी भाई, इतनी महंगी कौन खरीदेगा, चलो घूम के देखते तो है। तो हम गए अंदर और वो जेंटलमैन मुझे कहता है, सॉरी वी आर क्लोज्ड। आई सेड यू कैन नॉट बी क्लोज्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई नीड टू सी योर स्टाफ। कहता प्लीज कम टुमारो, आवर क्लोजिंग टाइम इज 5 o'clock। ये भैया 5 बजे बंद करके जाएगा कहाँ? अब सोचो यही चांदनी चौक में, करोल बाग में, अहमदाबाद हीरा गेट में कहीं पर ये दुकान होती और बंदा आता है ऐसे, तो वो क्या करते, चाहे बंद भी कर ले होते ना तो भी खोल लेता। आपने पास सामान ना होता ना तो कहते बस बैठो ना, चाय पियो, बस अभी लाए, पीछे से ला रहा है वो पीछे मुंडू को भेज के, किसी का घर खुलवा के, उसका शटर अप करवा के, उससे माल लेके, उन्हें घर में चाहिए था। ये थोड़ी बोलेगा कोई कस्टमर आया। बट यहां ये बंदा कहते नहीं, इट्स क्लोज। आई सेड ओके। देन आई ऑब्जर्व्ड, हम लुसन में थे, everybody just goes back to their house. Nobody goes to a restaurant. They go to
home, eat their dinner, and then they party a lot, but they are in their bed by 9 because their day begins at 4:30. 6 o'clock they have already taken their breakfast and they all bicycle. Not many cars, साइकिल पे अपने वो जाके पूरे 8 बजे उसने अपनी शटर इज अप. लंच आवर 1.5 घंटे के लिए फिर बंद है. अब वो कोई धार्मिक देश नहीं है, मेहनती लोग हैं, पर उनके पास एक चीज देखी, वो है सब्र. And they are very happy with what they have. So बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां लोगों को बेचते हैं, खुद की कलाइयां खाली होती. ऐसा क्यों? मैंने एक से पूछा कि रे टाइम बाउंड्स अस एंड आई डोंट विश टू बी बाउंड. समय हमें बांध देता है. तो एक दफे मैं घर आ गया, मेरी जॉब खत्म हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं अपनी कलाई से घड़ी हटा देता हूं. फिर मैं कहा समय का अंदाज कैसे? कितने बाहर देखते हैं ना तो आसमान से पता लग जाता है कि इतना समय हो गया होगा. जैसे एक समय में हमारे देश में सूर्य घड़ी होती थी, रात्रि के लिए तारे को घड़ी बना लेते थे, तो आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट थे. अब एक घड़ी कलाई पे है, एक घड़ी फोन में है, एक क्लॉक कमरे में है, एक वॉल क्लॉक है, और फिर भी टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है पता ही नहीं चल रहा किसी को. सो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट. तो आसन प्राणायाम करके धारणा तक पहुंच के फिर ही कोई ध्यान तक पहुंचता है. सिर्फ आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता. जो आपके जो डर लगता है, तो फिर आप तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या कर रहे हो जिसमें डर लगे. भाई अब तुम यहाँ हमारे साथ हो, यहाँ कुछ समय बैठे हो, आंख भी बंद किए है, तो कब मौका आया कि डर लगा हो तुम्हें? डर मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव फोर्स. ईश्वर प्रेम, ईश्वर के मार्ग में डर को कोई जगह नहीं होती. डर को तो हम घोल के पी जाते हैं. डर क्या होता है? डर सिर्फ हमारा ख्याल होता है और कुछ भी नहीं. और अपने ही ख्यालों से जो डर जाए वो बंदा कैसा है? वो तो बंदर हो गया. हमारे ख्याल हमें मजबूत बनाए, ना कि हमें डराते रहें. और रही बात मरने का डर जो लगता है, तो भाई एक चीज समझ लो, जो पैदा हुआ हो वो मरेगा, चाहे वो कोई होए, चाहे श्री राम होए और चाहे रावण होए, चाहे पीर फकीर होए, चाहे चोर ठग होए, चाहे साधु होए, चाहे धर्मात्मा होए और चाहे कातिल होए. Death is evident and clear and marked for everybody. So don't die before the death actually happens. और जब तक आपका समय नहीं आया ना, मरोगे नहीं. पक्का, प्रॉमिस. लिख के ले लो. जब वक्त आएगा तो बचोगे नहीं. पक्का, प्रॉमिस. और जब तक वक्त नहीं आया, कोई कुछ कह ही नहीं सकता. नाम नहीं लिखा पर पूछा है, इस शिविर में पहली बार आया हूँ, आपके दर्शन करके अति आनंद मिला. मेरा प्रश्न ये है, हम पहले दिन से सुन रहे हैं हर प्राणी के अंदर हरि का वास है. इस वाक्य के सहारे चलते से मुझे बड़ा आनंद मिला. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस वाक्य को पूर्णता से अनुभव किया है, उनकी अवस्था कैसी होगी? ऐसे महापुरुष हमें कैसे मिलें? पुरुष ही ढूंढना हमेशा. हद हो गई ना. सिखा मैं रही हूं, ढूंढ पुरुष रहे. अच्छा ही कि तुमने नाम नहीं लिखा, नहीं तो सारी पलटन पीटती तुझको. मुझे एक सूफी कहानी याद आती है. बंदा बैठा होता है पेड़ के नीचे, तो वो उसको कहता है कि मैं ना किसी महापुरुष को मिलना चाहता हूं. कैसे मिलूं? कोई पहचान कैसे पता चले? इतनी दुनिया, इतने गुरु, इतने संत, हाउ टू नो?
महात्मा कहते हैं तुम ढूंढो, वो तुम्हें एक वृक्ष के तले मिलेंगे और उस वृक्ष की छाया उनके ऊपर पड़ रही होगी और वो एकदम शांत और एकाग्र होंगे और ध्यानस्थ होंगे और उनका चेहरा बड़ा रोशन होगा। उसने इतना सुना तो वो भागा, पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, 20 साल निकल गए, कोई नहीं मिला। 20 साल बाद सोचता है चलो वापिस ही जाता हूं। वापिस आया तो लगता है अच्छा वो महात्मा जी को मिलता हूं, वो जो एक हमारे गांव में थे उनको मिलता हूं। तो वो उस डायरेक्शन में जाता है तो क्या देखता है, जब सामने नजर गई तो वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, छाया तले एक महात्मा है। अरे मिल गए, पास गया, चेहरा देखा, रोशन नूर से भरा हुआ। तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते, अरे मिले भी तो कहां, 20 साल दुनिया छान ली, मिले भी तो कहां, अपने ही गांव में। फिर वो कहता है महाराज कुछ वचन मुझसे बोलिए। महाराज आंख खोली, उसकी ओर देखा तो एक बार लगा ये कहीं देखे, कहते आपको मैं पहली बार मिल रहा हूं पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कहीं देखा है। कह रहे 20 साल पहले तूने मेरे से ही तो पूछा था यहीं पर कि महात्मा कहां मिलेंगे, और मैंने तुम्हें कहा वृक्ष के तले शांत प्रकाश से भरे हुए चेहरे और नूर में। कहते तो आपको तब कहना चाहिए था ना कि मैं ही हूं। महात्मा कहते जो ये कह दे कि वो मैं ही हूं वो महात्मा नहीं है। तू नहीं देख पाया, तू नहीं पहचान पाया, ये तेरी गलती है, ये तेरी भूल है, मैं नहीं कह सकता हूं। आज तुम कह रहे हो पहचान लिया, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं। एक इशारा भर दिया तुझे, पेड़ होगा, पेड़ के तले होंगे, पेड़ की छाया होगी, शांति की वो मूर्ति होंगे। तो 20 साल लग गए कई बार समझते समझते, बड़ा चक्कर है ये।